Siluk, from Poop village to pride of India, in the heart of Arunachal Pradesh, hidden amongst the serene hills of East Siang district, lies a village with a story that has captured the imagination of a nation. This is the story of Siluk, a village once buried in its own waste, now reborn as India's first government-recognized zero-waste village. Not long ago, Siluk was mockingly called Gobar Basti, the poop village, a name it earned from the heaps of unmanaged garbage, knee-deep waste in its roads, and animals roaming freely in every lane. But from the darkness emerged a light. In 2019, a young and determined member of the Adi tribe from Siluk village, Mr. Kepang Nong Borang, decided that enough was enough. What started as one man's quiet rebellion against filth now turned into a movement, a mission of hope, responsibility, and transformation. He launched the Swachh Siluk Abhiyan, a grassroots cleanliness campaign that awakened the spirit of the entire village. Together, the people of Siluk cleaned their surroundings, built waste management systems, educated their children, and learned sustainability not just as a concept but as a way of life. And now, the story is being told in classrooms across the country. Recently, Siluk has been featured in the CBSE textbook of Class 3 Environmental Studies, Chapter 12, titled Taking Charge of Waste. A story of a forgotten village, now inspiring children from all parts of India to take responsibility of their surroundings and believe in the power of collective action. With national recognition now shining on Siluk, there is a growing call for the government to step in, allocate funds, build infrastructure, and help the village in becoming a model for ecotourism destination. Because Siluk is just not a story of cleanliness, it is a symbol of what's possible when a community unites with vision, courage, and determination. From being laughed at as Poop Village to now being recognized as a national model for waste management, Siluk showed us that even the dirtiest path can lead to the greatest future. Siluk is just not a place on the map, Siluk is movement, Siluk is hope. ये जो सिलुक बस्ती है वो रिसेंटली सीबीएसई का टेक्स्ट बुक में आया है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जानकर कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है। हमारा अरुणाचल में ऐसा अगर आता है तो बहुत अच्छा बात है। और सिलुक तो अच्छा ही लगा है हमको। हम लोग हमेशा आना जाना में हमेशा रुकता है, सामान लेता है कुछ और आपका साफ सफाई के बारे में बहुत पहले से सुना हूँ, अच्छा लगता है। आपको एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है, मतलब यहाँ का नेचर एंड एवरीथिंग? बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा। और आप अपना अरुणाचल का बाकी विलेजेस लोग को ऐसा कुछ बोलना चाहेगा या से इंस्पिरेशन लेकर? हाँ जी, इंस्पिरेशन लेना है, अच्छा चीज़ को सब इस आदमी सीखना है, बोल के सफा रहना और अच्छा सब बिजनेस में देखिए सुबह शाम आप लोग यहाँ में अच्छा से रहता है, बिजनेस करता है, ऐसा ही सब आदमी ऐसा ही रहना है, अच्छा रहना है। Upag naluk dolong si kitab lo CBSE kitab lo aduda damno kapag isa feel dun मतलब asinga idun नया दपल नल kapag isa हम आतेतन पहले तो बहुत गंदा था ना विलेज जो, फिर आप लोग क्या काम किए, कैसे करके क्या रोल निभाया है दम पहला लुक भी अन्यों को ngulu atdong ngulu ek tarik kedallo dolong am ibun na ito atlo dui tarik kedallo ipal dam atdong kitabla dong damung asidong asidong medong ay to kitabla nam lagapa dal no tabung am ngoluk viewers kana kedaram नल दपल अबुद विलेज केदारम at मतलब कुछ बोलने के लिए है क्या कि कुछ सीखो बोलकर? dolong abud dolong kom ipalagi do dan nam lagapa dan naman nam lagapa imulbrug dolong kedara kom kampo ya tabung lagapa ay do. So let's hear from the chairman of Swachh Siluk Abhiyan on his journey on cleanliness and the endurance of the recognition he has been yearning for. So sir, please give us your brief introduction. मेरा नाम है केपांग नोंग बोरांग, चेयरमैन है स्वच्छ सिलुक अभियान का। So first of all, my question is, ये कहानी का जड़ से आप इसको डिटेल में एंड तक लेकर बता दीजिए। देखिए ये 2019 का बात है। यहाँ हमारा जो लुमरदाई है, लुमरदाई का डेथ एनिवर्सरी में डॉक्टर किडनी सिंह आया था, तो फॉर्मर हमारा ईस्ट सियांग डीसी। तो
आके उन्होंने भी गंदगी को देखा है, तो हम लोग को बोला है स्वच्छ भारत शुरू करना है। तो उस समय हम लोगों ने उसका बात का रेस्पॉन्ड किया है। तो उसके बाद उस समय लेडुम बस्ती क्लीनेस्ट विलेज था, तो लेडुम बस्ती में भी हम लोग गया है किस तरह ऑर्गेनाइज करता है। तो वहाँ जाके काफ़ी सीखा है उन लोग को किस तरह स्वच्छ भारत करना है, स्वच्छ भारत के बारे में भी जाना है लेडुम का जीवी से, पंचायत लीडर से। उसके बाद हमारा जो है स्वास्थ्य सिलुकियन वेलफेयर केबांग है हमारा यहाँ पे, सिलुकियन वेलफेयर केबांग जीबी एसएसजी मिलके हम लोगों ने ये किया है, फॉर्मेशन किया है स्वास्थ्य सिलुक अभियान। तो एक हमारा टीम रहेगा कि वो स्वास्थ्य का ही काम करेगा। तो फॉर्मेशन किया है। पहले पहले तो इतना कम ही लोग ये काम में शामिल था, तो करता गया जो एसएसए टीम है अपना काम। पहले सबसे पहले तो गाय गोरू जो बाहर घूमता है उसको कंट्रोल किया है, फिर रास्ता में बहुत गोबर था उसको साफ किया है, वाइट वॉश किया है। तो इसी तरह टीम करता गया तो लोगों को भी अच्छा लगा है, जोड़ने लगा है, लोग एक एक करके जोड़ने लगा है। फिर हमारा कम्युनिटी हॉल में एक दिन फिर डिसाइड किया कि हाँ हम लोग सब मिलके करना चाहिए। तो एक एक से होके हमारा एसएसए से होके फिर कॉलोनी जुड़ गया, फिर सारा बस्ती ऐसे जुड़ गया। तो उसके बाद हम लोग 2 तारीख को फैसला किया कि गांधी जयंती में ये स्टार्ट हुआ, तो 2 अक्टूबर को ही हम लोग ये सोशल सर्विस का ये प्रोग्राम रखेगा बोल के। तो अभी तो वही है, महीना का 2 तारीख को, हर 2 तारीख को सोशल सर्विस ऑर्गेनाइज करता है। और कॉलोनी वाइज तो हर मॉर्निंग को करता है, और सुबह जैसे गंदगी का अगर ज़्यादा गंदगी होगा तो ऐसे तो पहले बहुत करना पड़ता था, आज सफा करेगा कल फिर गंदा होगा, लोगों में जागरूकता नहीं था। तो अभी ऐसे कि करते करते हम लोगों को 3 टाइम क्लीनेस्ट विलेज का अवार्ड मिला, फिर जीरो वेस्ट का बालीफरा फाउंडेशन का भी मिला है। तो काफ़ी जागरूकता आया है। तो अभी सोशल सर्विस भी हम लोग को कम ही करना पड़ता है, महीना में सिर्फ एक ही बार करना पड़ता है। तो अभी तक भी वही है, लोगों का दिलो दिमाग में बस गया। तो अभी भी हम लोग काम जारी है, इस तरह से है। ओके, सो आपको गवर्नमेंट ने कोई फंड्स प्रोवाइड किया है, और क्या क्या चैलेंजेस आया इस प्रोग्राम को लेकर, और आपने कन्विंस कैसे किया पूरा गांव वालों को? ऐसे कि गवर्नमेंट का तरफ से कोई फंड बोल के भी नहीं है, हम लोगों ने भी तो फंड के लिए नहीं किया है। लेकिन क्लीनेस्ट विलेज जब मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो उसमें चीफ मिनिस्टर का तरफ से 50,000 का यह होता है, इनाम देता है। लोगों को वही है कन्विंस करने के लिए, किसी को ज़बरदस्त नहीं किया है। तो हम आता है तो खुद, अगर लोगों को कन्विंस करने के लिए पहले खुद करना पड़ता है, तो हम लोगों ने भी वही किया है। हम लोग खुद पहले किया तो लोग आ गया ना, जुड़ना चाहिए बोल के, तो ऐसे। और आपका आगे क्या क्या स्टेप्स रहेगा रिगार्डिंग दिस अभियान? आगे यही रहेगा कि हमारा जो मिशन है, तो पूरी तरह अभी तक भी ऐसे है कि कोई गंदगी तो तोरा मोरा होते हैं, काफ़ी जागरूकता आया है, फिर भी अभी भी और आना बाकी है। तो हम चाहता है कि एशिया का जो क्लीनेस्ट विलेज है उसका जैसा हो, हमारा जो बस्ती में भी उसका जैसा हो, लोगों में पूरी तरह से जागरूकता हो, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और बस्ती का कुछ फंड भी जनरेट हो। तो उसी में अभी भी चल रहा है हम लोग का। रिसेंटली जो आपका विलेज जो है वो एनसीईआरटी सीबीएसई में छपा गया है, आप इसमें अपना हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कीजिए और बताइए हमें कि आप किस किस को थैंकफुल है। इसमें तो हम लोग सब खुशी है, जैसे कि हमारा साथ तो बहुत सारा टीम जुड़ा हुआ है, जैसे कि पीपल ऑफ सिलुक ऑरिजिन है, यिरांग वेलफेयर सोसाइटी है, और हमारा सिलुकियन वेलफेयर केबांग है। हम सब जुड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग 2019 से काम कर रहा है।
तो ऐसे तो कोई मतलब पब्लिसिटी प्रमोट नहीं हुआ था। तो एनसीईआरटी में जब आया है तो अभी हम लोग का जो स्वच्छता का काम है, हम लोग जो मेहनत करता है तो ऑल ओवर इंडिया पड़ेगा। तो हम लोग जो अभी स्वच्छता की और जो कदम बढ़ा रहा है तो हम लोग उसे इंस्पायर होके कोई अगर भारत पूरा स्वच्छता एक स्वच्छ कंट्री होगा तो वो तो खुशी का बात है। तो हम लोग इसलिए बहुत खुशी है कि हम लोग का जो काम करने वाला को यहाँ एनसीईआरटी में दिया बोलकर। So lastly, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे to the whole of Arunachal? हम ये मैसेज देना चाहेगा कि ऐसे नहीं कि सिलूकी कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। अगर आप लोग का करने का इंटरेस्ट होगा तो हमने भी तो जैसे ग्रास रूट लेवल से विदाउट फंड लोगों को मोबिलाइज किया है, शुरू किया है और आज इस मुकाम पर पहुंच गया कि सीबीएसई का उसमें भी आ गया। तो आप लोग भी ये करना है, अपना पहले घर से शुरू करना है और आप अपना जगह हर एक अपना जगह को साफा करना है। तो ऐसे होने से एक दिन हमारा सारा अरुणाचल ही एक स्वच्छ वाला ये होगा स्टेट होगा। फिर दूसरा स्टेट भी इसी तरह करना है तो हमारा सारा इंडिया भी एक दिन क्लीनेस्ट वाला कंट्री होगा। तो यही मेरा मैसेज रहेगा। Thank you sir for your precious time. So that is it for today's coverage. Stay tuned with Eastern Post for more such updates. This is reporter Noinam Parme signing off with cameraman Tonyang Degu.